In today's session, we have completed with exercise 2.1, which dealt with all Carl Pearson method. And in that we did long sums as well as the short sums. Today, I intend to start with the new method, that is rank correlation method. But first, we need to understand the theory, why rank correlation method to be used. And there are two formulas. In rank correlation, there are two formulas to be seen. Today, we'll be doing on only one formula, sums. We would be doing today sums on one formula, the first formula. So fatapat everybody, open your textbooks, go on to page number 85. Open your textbooks, go on to page number 85. Now those who are not having the textbooks, not to worry, but I am sharing the screen with you. Spearman method of rank correlation. Spearman method of rank correlation. Now let's start reading that. We have studied, dekho zara, we have studied the Carl Pearson method to find out the correlation coefficient between two variables, and it's a clear that the method is to be used, underline karo, when the two variables are quantitative. That is, both the variables can be expressed numerically. तो कार्ल पियर्सन का फॉर्मूला कब यूज होता था? जब डेटा क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटेटिव, दैट इज हम उन डेटा को न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, उन्हें न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं. बट इन प्रॉब्लम ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्री, सोशल साइंस, there are some situations in which we deal with qualitative variable, underline attribute. We deal with a qualitative variable attribute, that is beauty, honesty, skill, morality, proficiency in elocution, music, dance, etc. And in such situation, these characteristics, qualitative variables, are incapable of quantitative measurement. अच्छा, सोनी टीवी पे अभी एक नया डांस शो आ रहा है, ये सुपर डांसर चैप्टर 4. बेटा कितने लोग देखते हैं सुपर डांसर चैप्टर 4? बहुत बढ़िया बेटा, मेरे घर पे भी ये चलता रहता है, मेरे घर पे भी चलता रहता है. अब अगर तुम वो देखोगे, उस डांस कंपटीशन को तुम अगर देखोगे, तो क्या तुम न्यूमेरिकली बता पाओगे कि कौन से बच्चे ने कितना अच्छा डांस किया? कि ऐसा खड़े हो जाते हैं ने 500 रुपया निकले पॉकेट માંથી, अरे આજે પેલા તો 500 રૂપિયા જેવો ડાન્સ કર્યો છે, ન્યુમેરિકલી એક્સપ્રેસ કરી કાઢ્યું. અને કોઈએ ખરાબ ડાન્સ કર્યું તો આપણે એવું કહીશું, આને તો 100 રૂપિયા જ આજે દેવાના છે. नो, कैन आई से जो जज हैं, जो जज, वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पर उनको रैंक करते हैं कि भाई तेरी आज की परफॉर्मेंस एकदम सुपर से ऊपर है, सीडी लेके आओ, नहीं ये सारी चीजें करते रहते हैं. फिर वो कप तोड़ते रहते हैं. आर यू गेटिंग इट? बेटा ये सारी चीजें देखो यार, तो तुम एग्जांपल रिलेट कर पाओगे मेरा, नहीं तो तुमको तो समझ में नहीं आएगा मैं बोल क्या रहा हूं. बट देन इन दिस डांस शो दे रैंक द कंटेस्टेंट. ओके, कि भाई तुम्हारा आज ये रैंक आया है, तुमने आज बहुत अच्छा डांस किया है. उसी तरह से ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, ये मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड. बेटा वो देखते हो मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड? शाबाश, सारे लड़कों ने थम्स अप किया, बहुत बढ़िया बेटा. तुमसे यही उम्मीद थी, तुमसे यही उम्मीद थी. तो हमने अगर वो मिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट का अगर देखा हो, तो उन सब चीजों में भी उनको रैंक्स अलॉट करते हैं कि भाई ये टॉप है, ये विनर है, देन फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, ये सारी चीजें आती हैं. तो जब हम क्वालिटेटिव चीजों से डील करते हैं, तब कार्ल पियर्सन का मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे हम. वी हैव टू अप्लाई, वी नीड टू अप्लाई स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. आगे जरा पढ़ते हैं. आगे
जरा पढ़ते हैं. In such situations, the characteristics, qualitative variables or attributes are incapable of quantitative measurement, but they are ranked serially according to their proficiency in such characteristics. The correlation coefficient computed such ranks of two characteristics as suggested by Charles Spearman is known as rank correlation method. अब उसके देखो एग्जांपल्स जो है वो अंडरलाइन कर लो. 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि वेयर डू वी यूज दिस कार्ल पियर्सन मेथड. वेयर डू वी यूज दिस कार्ल पियर्सन मेथड कि ये रैंक कोरिलेशन कब यूज होता है. तो इफ वी वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू एट्रीब्यूट्स, ऑनेस्टी एंड द पंक्चुअलिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, तो उसमें हम ये रैंक कोरिलेशन करेंगे, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी. Then the study of the relationship between the judgment of the two judges, कि भाई कोई रियलिटी शो में 2 जज जो रैंक्स असाइन कर रहे हैं कंटेस्टेंट्स को, तो उनके बीच के जो अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में क्या कोरिलेशन बैठ रहा है, तो वो हम रैंक कोरिलेशन से फाइंड आउट करेंगे. Sometimes if the data consists of the quantitative variables like height and weight, the rank correlation is obtained assuming, now ये अंडरलाइन करो, कभी कभी क्वांटिटेटिव डेटा में भी हम ये रैंक कोरिलेशन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं by assigning them the rank. Are you getting that? तो क्वांटिटेटिव डेटा में भी अगर हमें बोला है तो उसमें हम रैंक असाइन करके हम करेंगे. लेकिन अगर आपको कोई पूछ रहा है कि जनरली कब यूज होगा कार्ल पियर्सन का, तो हमें ये समझना है कि द डेटा विल बी ऑफ अ क्वालिटेटिव नेचर. वी विल नॉट एबल टू एक्सप्रेस देम इन नंबर्स. दैट इज व्हाई वी वुड बी गोइंग फॉर कार्ल पियर्सन रैंक कोरिलेशन मेथड. ओके, उसका फॉर्मूला लिख लेंगे. चलो, द फर्स्ट फॉर्मूला, there are, I told you there are 2 formulas, but out of that we are using the first formula today. We'll be doing sums on the first formula today. Okay, write it down. Come on, give the heading Carl Pearson, sorry, not Carl Pearson, Charles Spearman. Charles Spearman method of rank correlation. तो उसमें R कोरिलेशन का जो हमें यूज करना है, तो 1 - 6 सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1. 1 - 6 सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1. di कैसे मिलेगा, लिख लो, रैंक ऑफ वेरिएबल x and the rank of variable y. रैंक ऑफ वेरिएबल x माइनस रैंक ऑफ वेरिएबल y, उस तरह से हमको di मिलेगा. चार्ल्स स्पीयरमैन मेथड ऑफ रैंक कोरिलेशन, 1 - 6 सिग्मा di स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर -1. ओके, एक्सरसाइज 2.3 पर चले जाएंगे. सम नंबर 1 उठाते हैं. चलो, एक्सरसाइज 2.3, sum number 1. Everybody, let's start. Everybody, let's start. But here is my sum. 6 companies are ranked by 2 market analysts on the basis of their growth in the recent past. तो कंपनी A, B, C, D, E, F, उनके ग्रोथ के बेसिस पर एनालिस्ट ने उनको रैंक असाइन किए हैं. अब देखो, रैंक अगर असाइन किए हैं तो हमें रैंक कोरिलेशन से ही जाना है
अब देखो, एनालिस्ट ने ऑलरेडी रैंक दे दिए हैं. आर यू गेटिंग इट? सो आवर जॉब बिकम्स वेरी इजी. लेट्स रीड द सम. लेट्स रीड द सम के ये 6 कंपनी को एनालिस्ट ने रैंक क्या दिया है. द फर्स्ट एनालिस्ट हैज गिवन हिम द रैंक 5 ए को, जबकि दूसरे एनालिस्ट ने उसको 6 दिया है. बी को 2, उसने 4. सी को 1, इसने 3. डी को 4, इसने 2, 3, 1, 6, 5. ऐसे उन्होंने रैंक्स दिए हैं. अब मुझे ढूंढना है कि ये दोनों एनालिस्ट के जो रैंकिंग सिस्टम है, क्या उनके बीच में कोरिलेशन बैठ रहा है कि नहीं. तो ये सम ऐसे कॉपी करो, फिर नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी का, विच इज आर एक्स माइनस आर वाई. प्लीज डोंट मेक द मिस्टेक, इट इज आर एक्स माइनस आर वाई. एंड देन नेक्स्ट कॉलम बनेगा डी आई स्क्वायर का. The next column will be for di square. ऐसे कॉलम बना दो फटाफट. चलो, कंपनी, एनालिस्ट 1, एनालिस्ट 2, देन di का कॉलम. एंड व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर di? rx माइनस ry. एंड देन di का हम स्क्वायर कर देंगे. हम di का स्क्वायर कर देंगे. डू यू गेट दैट? बेटा, are your calculators ready? Let's begin. 5 minus 6, I again repeat, it is rx minus ry. So 5 minus 6, तो -1 आएगा. 2 minus 4, that will be -2. 1 minus 3, -2. 4 minus 2 will be 2. 3 minus 2 will be 2. 6 minus 1 will be 1. एंड टोटल करो, देखो 0 आना चाहिए. डी का टोटल हमेशा, इट्स अवर चेक पॉइंट कि हमने बराबर रैंक लिए हैं और आगे हमें सम्स जो करने हैं उसमें हम रैंक हम असाइन करेंगे. ऐसा आज हमें सम करना है जिसमें हम रैंक असाइन करेंगे. तो जब रैंक असाइन करने के बाद जब हम डी को फाइंड करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या है, आर एक्स माइनस आर वाई, तो उसका जब हम टोटल करेंगे तो 0 आना चाहिए हमेशा. तो अपने रैंक्स जो हैं वो बराबर हमने कैलकुलेट किया है डी. ये हमारा चेक पॉइंट है. ओके, बट फॉर्मूला में डी नहीं चाहिए, हमें फॉर्मूला में डी स्क्वायर चाहिए. तो स्क्वायर इट अप, कम ऑन. डी स्क्वायर चाहिए मुझे, तो ये 1 आएगा. 4 4 4 સોરી 4. તમને જોઈને નીકળી જાય છે આવા શબ્દો, વાંધો નહીં. ટોટલ કરો, ટોટલ કરો. टोटल कितना आ रहा है? डी स्क्वायर जो मुझे चाहिए टोटल 18 आ रहा है. मेरा टोटल 18 आ रहा है. या सो यहां पर डी स्क्वायर का टोटल 18 कर दो. एंड नाउ चलो, लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला. लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला रैंक कोरिलेशन का. 1 minus 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n, n स्क्वायर minus 1. 1 minus 6, बेटा ये 18 के नीचे लिख देना. ये सिग्मा डी स्क्वायर है, तो 6 into 18, n कितना है? 6 कंपनी के एनालिस्ट करके हमने रैंक दिया है ना. तो 6 into 6 स्क्वायर -1. सो बेटा ये -1 को साइड पे ही रखना, ऐसा इकट्ठा मत कर देना, नहीं तो तुम्हारी आदत है ये 1 को ऐसा साइड में साथ में ही ले लेंगे. तो इट इज 108 डिवाइड बाय 6 into 36 minus 1. तो 1 minus 108, 36 minus 1 is 35. 35 into 6, 210. सो पहले बेटा डिवीजन करो, पहले डिवीजन करो.
पहले हमें डिवीजन करना है बेटा 108 पहले डिवीजन हम करेंगे 108 डिवाइड बाय 210 that comes to 108 divided by 210 that comes to 0.51. So बेटा जरा फाइनल आंसर चेक करो 0.49 आला है या our final answer we are getting 0.49. Our final answer is 0.49. Now बेटा try to understand. If we are using Spearman का भी फॉर्मूला समझो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन भी यूज कर रहे हैं तो आंसर तो -1 से 1 के बीच में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि हमको कुछ अलग ही आंसर्स आएंगे ये मेथड से। आर का आंसर तो -1 से +1 के बीच में ही आएगा। ओके, कार्ल पियर्सन हो के स्पीयरमैन हो, वन एंड द सेम, -1 to 1 के बीच में। सो बेटा फर्स्ट सम डन। इज इट अंडरस्टूड? इज इट अंडरस्टूड? अच्छा, कैन यू डू वन सिमिलर सम ऑन योर ओन कि जहां पर रैंक असाइन कर दिए हो और तुम खुद से आंसर लेके आओ। सो 2.2 का मुझे जरा सम नंबर 2 करके दो। चलो 2.2 का सम नंबर 2 करके दो। An official has ranked 9 villages of a sample on the basis of the work done in the area of Swachhta Abhiyan and Beti Bachao by the village. So इन विलेज को रैंक कैसे दिया है? विलेज 1 को 4th रैंक मिला है स्वच्छता अभियान में और बेटी बचाओ में 6th, देन दूसरे वाले ने 8 ऐसे रैंक दिए हैं। सो अगेन हमारे पास रैंक है, पहले से ही अपने पास रैंक है, हमें सिर्फ DI फाइंड आउट करना है। एंड DI का फॉर्मूला क्या है? RX माइनस RY एंड देन रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाना है। स्टार्ट करो। चलो सेकेंड सम। I am not gonna do that. Send me the answer, send me the message. Come on, second sum. But anybody started with the sum? Anybody started with the sum? Okay, you want me to do that?
Okay, I'm getting thumbs up indicating that you people have started. That's amazing. Sir, we have started, but then don't know whether we'll able to end the things on our own. Okay, but I'm also starting now along with you. Come on, let's start. DI 4 minus 6 to minus 2. Okay, then 8 minus 8 will be 0. 7 minus 5 will be 2. 1 minus 1 will be 0. 9 minus 9, 0. 5 minus 7 will be 2 minus 2. 6 minus 3 will be 3. 2 minus 4 will be minus 2. And 3 minus 2 will be 1. But let me just check whether am I getting the total शून्य के गलती हुई है किधर. I'm getting total 0. Yeah, DI, no गलती. Now DI का square 4 0 4 0 0 4 9 4 1. Okay, and then if I make the total of DI square which I want, if I make the total of DI square which I want, it's 26. DI square का total आ रहा है 26. The total is 26. एंड उसके नीचे प्लीज लिख देंगे कि ये जो टोटल आया है वो है सिग्मा DI स्क्वायर का. एंड देन वी अप्लाई द फॉर्मूला. R is equal to 1 minus 6 sigma DI square upon n square minus 1. 1 minus 6 into 26 upon n कितने हैं? There are 9 villages. Okay, so 9 into 9 square minus 1. So 1 minus 6 into 26, that will give me 156. 9 81 minus 1. So 1 minus 156 into 9, that is into 80. So 1 minus 156 upon 9 into 80 will be 720. So 1 minus 156 divided by 720 if I do, so 0.22 आ रहा है. 216 को राउंड ऑफ कर दो, 0.22 कर दो. So 1 minus 0.22 if I do 0.78. 0.78. बेटा वो 2166 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 22 ले लिया, इसलिए 0.78 आ रहा है. Right? So can I say that was an easy sum to crack? Because the ranks were already given to us. Right? Now we are moving on to a sum. Pay attention. We are moving on to a sum जो क्वालिटेटिव डेटा है, मतलब उसको न्यूमेरिकल टर्म्स में उन्होंने एक्सप्रेस किया है, लेकिन वो ऐसा बोल रहे हैं इसका जवाब रैंक कोरिलेशन से ढूंढो. बराबर है? तो उसमें हम क्या करेंगे कि रैंक हम असाइन करेंगे, उनको रैंक हम असाइन करेंगे. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, अगर बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूं, आपके अगर स्कूल्स में बेटा जब एग्जाम्स होती हैं तो जो मार्क्स है वो कैसे हैं? क्वालिटेटिव हैं कि क्वांटिटेटिव है? मार्क्स आर क्वांटिटेटिव, कि भाई आपको मार्क्स मिलते हैं कि आउट ऑफ 50 यू गॉट 40, देन 45, 50, 50 ऑन 50 हमको मिल रहे हैं. तो आपके जो मार्क्स है वो क्वांटिटेटिव हैं. लेकिन फिर क्या होता है कि जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स होते हैं उसको फर्स्ट रैंक मिलता है स्कूल में. सर मेरे से क्यों डिस्कस कर रहे हो? मेरा को भी रैंक नहीं आया है.
पिछले 1 साल से मैंने कोई एग्जाम ना दी है, नहीं तो मेरा तो मतलब सर्वोत्तम नंबर आने वाला है सर, 1 के भी ऊपर है मेरा नंबर, क्योंकि टेक्स्ट बुक का पूरा डिट्टो लैंग्वेज लिख लेता हूं। मेरी ऐसी मतलब ताकत आ गई है पिछले 1 साल में, बोलो। तो स्कूल्स में भी देखो कैसा होता है कि तुम्हारा जो क्वांटिटेटिव डेटा है उसके बेसिस पर वो तुमको रैंक यहाँ पर असाइन करते हैं। तो हमें भी वही लॉजिक यहाँ पर लगाना है। डेटा भले क्वांटिटेटिव होगा लेकिन उन्हें रैंक हम असाइन करेंगे। और रैंक कैसे असाइन होगा? जिसकी सबसे ज्यादा वैल्यू उसको फर्स्ट रैंक, फिर जैसे जैसे उनकी वैल्यू कम होती जाएगी उनको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट वाले को लास्ट रैंक मिलेगा। The least value will be given the least rank. Okay? Is the logic understood? हमने पहले 2 सम किए, उसमें क्या था? रैंक दे दिए थे। अब हमें क्या होगा कि हमको क्वालिटेटिव डेटा है लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा है उसको, लेकिन पहले रैंक्स देने पड़ेंगे, फिर हम रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। We go to exercise 2.2 sum number 3. 2.2 sum number 3. The following information is obtained by a survey conducted by a town planning committee of a state. तो उसमें सिटी है अपना ABCDE, पॉपुलेशन है लैक्स में एंड ग्रोथ रेट है थाउजेंड्स में। फाइंड आउट, देखो रैंक कोरिलेशन, ऐसा क्लियरली बोल रहे हैं कि हमें रैंक कोरिलेशन से चीजें फाइंड आउट करनी है। तो ये डेटा भले क्वांटिटेटिव है लेकिन उसको पहले हम रैंक असाइन करके फिर रैंक कोरिलेशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो पॉपुलेशन है उसे आप लोग x ले लीजिए, ग्रोथ रेट को यू टेक इट एज y। अब मुझे बताओ, पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट लिख लो पहले, फिर मुझे थम्स अप करके बताओ x में x की वैल्यू देख के तुम्हें क्या लगता है किसको फर्स्ट रैंक दिया जाए? x की वैल्यू देख के तुम्हें क्या लगता है किसे फर्स्ट रैंक दे हम? गिव मी थम्स अप। फर्स्ट रैंक किसको मिलना चाहिए? फर्स्ट रैंक प्रियंका। Yes, sir. 57. किसको फर्स्ट रैंक? 57. Why 57 प्रियंका? સૌથી મોટું છે. Can I say the highest value is 57? Very good. So उसको हम रैंक 1 असाइन करेंगे। उसके बाद सेकेंड रैंक क्या लग रहा है तुमको? सेकेंड रैंक प्रीशा, सेकेंड रैंक 45. 45, yes, the second highest number is 45, तो उसको हम सेकेंड रैंक असाइन करेंगे। बहुत बढ़िया। देन थर्ड रैंक, रैंक 3, वरुण। वरुण Sir, 18. 18, very good, yeah, 18 will be assigned with the third rank. Then I should not ask you, 14 को फोर्थ रैंक देंगे एंड 8 को फिफ्थ रैंक असाइन होगा। yes or no? So write down the rank of x, everybody please write down the rank of x। 1 2 4, 1 2 4 क्या है देखो ना, 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5 बराबर। नाउ तुम लोग बुद्धि चला के रैंक ऑफ y लिखो और मुझे मैसेज करो नंबर्स। जैसे ये x का कैसा आया, x नो आंसर शू आयो तो जरा जो तो 1 2 4 3 5, उसी तरह से रैंक ऑफ y मेरे को भेजो। पांचों 5 नो एक ज मैसेज में 5 नु रैंक ऑफ y आले मैसेज चालू हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा बहुत सारे जनों ने मैसेज किया, बहुत सारे जनों ने। 3 1 4 2 5 चेक करो
क्या तुम्हारे रैंक इस तरह से जा रहे हैं वाई के 3 1 4 2 5? बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो अपनी जगह से खड़े होके बेटा दया के जैसे नाच लो, एक बार दया के जैसे गरबा कर लो। अगर आंसर सही आ रहा है तो 3 1 4 2 5। चलो 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 चलो, 3 1 4 2 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So I'll share the screen and I'll also assign the rank. I haven't done that. I'll assign the rank. अब देखो, the biggest value is 20, तो उसे मैं रैंक 1 दे दूंगा। देन 15 को हम रैंक 2 दे देंगे, 13th को हम रैंक 3 दे देंगे, 10 को 4 दे देंगे एंड 5th को 5th रैंक मिलेगा। So 3 1 4 2 5. Let's find out DI. But let's find out DI. कैसे मिलेगा DI? 1 minus 3, so minus 2. 1 minus 3 minus 2. 2 minus 1 1. 4 minus 4 0. 3 minus 2 1. 5 minus 5 0. DI का टोटल करेंगे तो 0 आ रहा है। दिस इज 4 1 0 1 0। सो DI स्क्वायर का टोटल अगर हम करें तो 6 बैठ रहा है। चेक करो, द टोटल फॉर DI स्क्वायर इज 6। DI square is 6, and now let me write it over here कि सिग्मा DI स्क्वायर का टोटल 6 आ रहा है। सो हमारे रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? 1 minus 6 सिग्मा DI स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर minus 1। सो 1 minus 6 into 6, n क्या है? 5, 5 लोग थे, and 25 minus 1, 5 का स्क्वायर। So 1 minus 36, 5 into 24. So 5 into 24 अगर हम करेंगे तो 120 आएगा। So 1 minus 36 divide by 120. 36 divided by 120, that is 0.3. Beta, my final answer is 0.7. The final answer is 0.7 after assigning the ranks. 0.7। तानिया का कुछ आंसर गलत आ रहा था, 0.9 लिख के मैसेज करें हैं। तानिया 0.7 आ रहा है। Are you getting that? Yes, Dev. सर एक और पाछू स्क्रीन शेयर करજો મારું પણ 0.9 જ આવે છે। કરી દઈએ। હાલો are you 0.7? Beta 0.7 now. Any doubt? Beta, was there any problem in assigning the rank? Yes, Tanya. Any doubt, beta? Unmute, Tanya. अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं तानिया, क्या कर रहे हैं? यस सर। आंसर आ गया बेटा आपका? यस सर। आपने 0.9 लिख के भेजा था मेरे को। हाँ सर, वो 6 से 36 करना था, मैंने प्लस कर दिया 12। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो कोई टेंशन नहीं। नेक्स्ट टाइम विल यू एबल टू डू इट ऑन योर ओन, इवन असाइनिंग द रैंक्स ना होए थसे करी बताओ। फिर देखो वीकेंड का वार आता है, करके दो, फिर वीकेंड का वार आएगा। द नेक्स्ट सम आई विल टेल यू व्हिच इज टू बी डन। द फोर्थ वन, सी देयर आर सो मेनी वैल्यूज ना, 10 बच्चे हैं,
10 स्टूडेंट्स को रैंक देना है, सो प्लीज रैंक प्रॉपरली एंड फर्स्ट मैसेज मी रैंक ऑफ एक्स. सबके 10 के एक साथ मैसेज करना, એવું નહીં પહેલાનો 1 પછી 5 7 એવી રીતે ના કરતા. 10 10 રેન્ક એક સાથે એક જ મેસેજમાં કરો. r of x, then you give me r of y. Start. I'll share the screen. बिना टेक्स्ट बुक वाले स्कॉलर बच्चे. The following information is obtained by taking a sample of 10 students from a students of a science college. Now marks in maths, marks in stats. 39, 65, 62, 90, 82, 75, 25. ये रहे मेरे मार्क्स 98. बेटा मेरे मार्क्स बोले तो 25. हाँ, तुम्हारे से 25 मैथमेटिक्स. એના પછી જો મારા છે, મારા માર્ક્સ આયા 92, 98 सॉरी 36 and 78. कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को भेजा है मैसेज. अब देखो तुम जब ये मैसेज भेज रहे हो तो उसमें मुझे कैसे पता चलेगा ये r of x है कि r of y है? तो आगे वो भी तो लिखो ना कि इट इज r x. अंडू संडू मैसेज करते रहते हैं. अच्छा ध्वनि का मैसेज आया, प्रीशा का मैसेज आया. પ્રીશા અને ધનનો આન્સર સેમ આવે છે, જાગરવનો પણ સેમ છે, દિયા અમીન સેમ, સુહાની सेम, दिवसे सेम. फिर मैसेज आया स्क्रीन शेयर करो सर, कर देते हैं बेटा. चलो सर्जिता सेम, सिमरन ऑल्सो बराबर जा रहे बेटा. r of x बराबर है. जिन जिन के भी नाम लिए, जिन जिन ने भी मेरे को मैसेज किए उनका सही है. दिया अमीन r y बेटा वेट करવું પડશે, હજી r x નો મેસેજ આવી રહ્યા છે. जश शाबाश बेटा, तू खाली x लिख के भेज, बढ़िया है. छोड़ दे पढ़ाई. जील पटेल खोटा છે r x. ધ્રુવિક નું બરાબર છે. સિદ્ધાર્થ RX માં ભૂલ છે ભાઈ. સિદ્ધાર્થ, મયંક, જનિકા જયસ્વાલ ડન છે, બરાબર છે. ઈશિતા ડન છે. r of x. ध्रुवी डन. अमन बराबर है. दृष्टि बहुत बढ़िया. आ रहे बेटा मैसेज तो आ रहे हैं, मतलब तुम कुछ तो कर रहे हो, ऐसा व्यतीत हो रहा है. चलो मैं r of x असाइन करना शुरू कर रहा हूं. चलो r of x मैं असाइन करना शुरू कर रहा हूं, जरा चेक करेंगे. The 98 is the highest value I suppose. So 98 को फर्स्ट रैंक मिलेगा. Then 90 को सेकेंड रैंक, 90 को सेकेंड रैंक. Then 98, 90, then 82 को थर्ड रैंक मिलेगा. 82 પછી આવશે 78 द फोर्थ रैंक. 75 को फिफ्थ रैंक. then 65 सिक्स्थ रैंक. 62 7, 62 7, then 39 को 8, 36 को 9 and 25 को 10. 8 7 6 2 3 5 10 1 9 4. बेटा जरा चेक्स करो. 8 6 7 2 3 5 10 1 9 4. देन r of y में असाइन करना शुरू कर रहा हूं. सो 91 को फर्स्ट रैंक, 86 को सेकंड, 84 को थर्ड,
84 પછી 68 ને fourth, 62 ને fifth, 60 ને sixth, 58 7, then 53 8, 51 को 9 एंड 47 को 10th रैंक मिलेगा। चेक करो, इस तरह से हमारे रैंक जा रहे हैं वाई के। अच्छा बेटा, ईमानदारी से एक जवाब दोगे? विल यू गिव मी वन आंसर ऑनेस्टली? कितनों का आर ऑफ एक्स और आर ऑफ वाई सही था? दोनों सही है, दोनों। नॉट आर ऑफ एक्स, नॉट आर ऑफ वाई, बट बोथ। बोथ। ओ माय गॉड, जोरदार। क्या स्कॉलर बैच आई है यार ऑनलाइन में? तो ओहो, आटलू तो क्लास में लोगों ने आंसर दे सकते हैं, वो तमे ऑनलाइन जवाब आपो छो यार। कम ऑन, नाउ फाइंड आउट द डी एंड डी आई स्क्वायर। गिव मी द आंसर। डी एंड डी आई स्क्वायर। नाउ हमने ये रैंक असाइन करे हैं, वो हम कंक्लूड कर पाएंगे जब डी आई का आंसर 0 आएगा। सो दिस विल बी 2 minus 2, again minus 2, शून्य शून्य minus 2, 1 4 0 0 and 1। जस्ट कंफर्म, DI का टोटल अगर आपका 0 आ रहा है तो दैट्स एन इंडिकेशन कि हमने जो रैंक असाइन करे हैं एकदम परफेक्टली रैंक असाइन करे हैं। हमने जो रैंक असाइन किया है दैट इज एकदम परफेक्ट। एंड नाउ DI स्क्वायर 4 4 0 0 4 1 16 0 0 1। So if I do the totaling for DI square, I'm getting total 30. I'm getting the total 30 and DI का 0 आ रहा है। So 30 के वहां पर लिख देंगे this is sigma DI square। And now I am expecting you to give me the answer. Yes. Are many of you are getting 0.82? So let's calculate it. 1 minus 6 sigma DI square upon n n square minus 1। 1 minus 6 into 30, n है मेरा 10, 10 square minus 1। So 1 minus 6 into 30 is 180। 100 minus 1 is 99। So 1 minus 180 upon 990. So that's equal to 180 divided by 990. That comes to 0.18. 0.18. So my final answer will be 0.82. My final answer will be 0.82. But I hope you are getting the answer, 0.82. 0.82. So can I say the new method of rank correlation which we started today, कार्ल पियर्सन से इजी लग रही है? क्या बोलते हो? मंडे को नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, मंडे को नहीं लगेगा। जब दूसरा फॉर्मूला आएगा कल ये स्पीयरमैन का, तो भाले भाले सब अपने निकल जाएंगे। स्पीयरमैन ने जो स्पीयर मारे हैं देखो आगे, ठीक है। नाउ
માર્ક યોર હોમવર્ક પ્રોપરલી અને 15 સમ જ્યાં સુધી ના થાય ત્યાં સુધી અવાજ ના કરતા, થમ્સ અપ ના કરતા 15 સમ મિનિમમ કરવાના છે ઇન યોર હોમવર્ક. એનથી વધારે પણ થઈ શકે. ઓકે, so I am giving you chance, you can unmute yourself also. तो लिखना शुरू करो. चलो होमवर्क लिखना शुरू करो. इलस्ट्रेशन 16, इलस्ट्रेशन 17, इलस्ट्रेशन 18, इलस्ट्रेशन 20, ओके. इलस्ट्रेशन 20 तक हुआ. उसके बाद मेन एक्सरसाइज पर चले जाएंगे. एक्सरसाइज 2, द मेन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2. in that in that, can you see section C, right? section C का page 110, section C, sum number 11, 12, 13, 11, 12, 13, section C, 11, 12, 13, section C. Section D, sum number 10, 11, 12, 13. कितने हुए? 11. 11 हुए अभी तक. 11 हुए ना? 11 ही हुए ना? सेक्शन डी पे चलते हैं. चलो सेक्शन डी. सर हो गया ना सेक्शन डी. सॉरी, सेक्शन ई, आई एम सॉरी, सेक्शन ई. सम नंबर 1. अब देखो सम नंबर 1 में देखो ऐसा लिखा है, गो फॉर कार्ल पियर्सन मेथड. तो जैसे ही बोला कार्ल पियर्सन मेथड, हमें फिर एक ही फॉर्मूला मारने की, यूवी शॉर्टकट. डोंट अप्लाई एनी अदर फॉर्मूला, डोंट मैसेज मी, डोंट कॉल मी. सर कई फॉर्मूला थसे, યુવી વાળી જ કરજો. એક જ ફોર્મ્યુલાથી सम्स પ્રેક્ટિસ કરો એટલે આપણું મગજ માઇન્ડ સેટ થઈ જાય. and that formula also goes in our blood. okay, तो सेक्शन ई का फर्स्ट, देन सेक्शन ई में सेकंड, थर्ड, you're able to do fourth also. થઈ ગયા. શું પછી સેક્શન એફ પર આવી જાઓ. સેક્શન 15 सम्स થઈ ગયા. શું કહો છો? हाँ सर. सम्स થઈ ગયા. 15 થઈ ગયા? 15 થઈ ગયા. अरे शांति राखो ने. યાર 15 થઈ ગયા. अबे तुम सबको अभी अनम्यूट कर दूंगा, चुप रहो. अब तुम कुछ नहीं बोल पाओगे कितनी भी मेहनत कर लो. अरे मैं ऐसा सोच रहा था 15 सम का, देखो 15 सम में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे. ऐसा नहीं होता ना 7.5 सम आज करेंगे, 7.5 सम कल करेंगे, ऐसा नहीं. मतलब सैटरडे बैठा 10 सम करीशु, संडे बैठा 10 सम करीशु, એટલે ટોટલ 20 कर દઈએ. સર સેટરડે સન્ડે એટલી હેડકીઓ આવવાની છે ને તમને, તમે જો. तुम हाँ, नित्या मैसेज કરીને गोल करे છે, सर 14 सम આપો એટલે 7 થઈ જાય. नाइस आइडिया, बट फॉरगेट इट. सेक्शन एफ નો પહેલો, सेक्शन एफ का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. बस इतने हो पाएंगे तुमसे, इतने हो पाएंगे. ठीक है, अब समझो. इधर yesterday I got list from the supervisor कि कितने सारे जनों ने होमवर्क नहीं किया था, उनकी मेरे को लिस्ट भेजी है. बराबर है. अब होगा क्या कि ये वाला होमवर्क तुमको मंडे तक करके, मतलब
सैटरडे करके मंडे जब अपना लेक्चर है उसके पहले तुमको ये सबमिट कर देना है। सो मंडे जैसे ही सबसे पहले मेरा सेशन शुरू होगा, जैसे ही मेरे को वो लिस्ट मिली जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है, मैं उनको जूम में से निकालना शुरू कर दूंगा। यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जूम मीटिंग एंड आई विल ओनली थ्रो यू आउट ऑफ द मीटिंग। आई गॉट द लिस्ट फ्रॉम द सुपरवाइजर के कौन कौन होमवर्क नहीं कर रहा है। सो मंडे बिफोर माई जूम सेशन begins, I'll get that list, and जिन्होंने होमवर्क ये नहीं किए होंगे 19 के 20 sums, they'll be out of the Zoom meeting, they won't be allowed to sit in the Zoom. कोई डाउट डिफिकल्टी है सम में तो ठीक है, तो एक आध सम तुम नहीं करोगे तो बराबर है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं करके होमवर्क नहीं भेजोगे तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर।